کہ رات کے تارے کے موڑ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے. امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے. امام اوزاعی دن کے اجالے میں تو کام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جب خاتمہ نوکر رانی جب جھاڑو لگانے کے لیے پوچھا مارنے کے لیے اس کے گھر آیا کرتی تھی، وہ نوکر رانی امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی تھی، امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں وہ زمین وہاں پہ بھیگی ہوئی ہے، کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا؟ امام اوزاعی کی بیوی بولتی تھی، اے خادمہ ایسا نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میری شوہر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونے کا ڈر اتنا زیادہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جایا کرتی ہے. میرے شوہر کے یہ آنسو ہے، کسی بچے کا یہ پیشاب نہیں ہے. غور کیجئے میرے بھائیو، یہ مرنے کے بعد کا یہ ڈر فکر دلوں کے اندر تھا، لیکن آج تو ہے ہی نہیں. آج ہے ہی نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھی عمل کرے. یہاں تو نیک عمل کہاں، چندہ بھی دے رہا ہے، نام لے لیا اور جتنی لمبی دعائیں ہوتی ہے چندے اتنے جم کر کے دے رہا ہے دکھانے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چھپ کے بھی دے دو کہ مولوی صاحب یہ آپ رکھیے مدرسے کے لیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے. ابھی ایسا بھی ہونا چاہیے، کبھی اس طریقے سے بھی عمل ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، نماز پڑھنا یہ نیک عمل ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کبھی کبھی اٹھو اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاؤ. آئی میری بیوی اٹھ، دنیا میں تم میرا سپورٹ کرتی ہے. آئی میری بیوی اٹھ، چل تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، چل وضو بنا، تو بھی بنا، میں بھی بناتا ہوں، دونوں کے دونوں تہجد کی نماز پڑھ لیں. یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. رات کی تاریکی والی نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رات میں کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو. رحمہ اللہ رجل قام من اللیل، جو رات میں کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے اوپر رحم کرتا ہے. اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے وضو بنائے، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو اٹھا کر کے نماز پڑھائے. ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے. ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو نمازی بنا لیں، ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو نمازی بنا دیں. کہاں یہ دینداری کہاں ہے، یہ نیک اعمال ہمارے یہاں کہاں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ جاتا ہے، وہ بھی بس لاسٹ میں پہنچے گا. ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی بس دکھاوے کے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا. یہاں میرے بھائیو غور کرو، سوچو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. نیک اعمال اپنی زندگی میں نہیں ہے، اچھے اعمال ہمارے یہاں نہیں ہے. اب موقع ملے تو کیا نہیں کر بیٹھے، موقع ملے تو سب کچھ کرنے کو تیار. حرام مال مل جائے کوئی دیکھ نہیں رہا. ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ موبائل چھوڑ کر کے یہاں پہ جائیے، آپ اتنے دیندار لوگ نہیں ملیں گے کہ وہ موبائل آپ چھوڑ کر کے جائیے اور صبح میں دیکھیے موبائل ہی نہیں ہے، پھر اعلان کیجیے بھائی کس نے لیا؟ کسی نے نہیں لیا، پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا. دینداری نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے تو چلو میں نے یہ موبائل پایا ہے فلاں کو دے دو، ایسا نہیں ہے. حالات دیکھ رہے ہیں آج، حرام خوری ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس کیا ہے. زناکاری ہماری عام ہو چکی ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کے اندر فحاشی، عریانیت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا، اللہ کا پاور نہیں بتایا. اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو آپ نے بتایا نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو،
کریم کی آیت ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. قیامت کے دن لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو لے کر کے آئے گا. اس دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے ہوتے. جلسے میں گئے تھے تو جلسے کے جو آداب تھے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. لڑکیوں کے لیے پنڈال الگ سے بنایا گیا ہے تاکہ بیٹھ کر کے آپ تقریریں سنیں. ایسا بھی اپنے خوبصورتی کا پرچار کریں اور اپنے حسن دکھاتے پھریں. یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. اور لڑکوں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگو، کبھی اس کے پیچھے بھاگو، کبھی زنا کے چکر میں ادھر ادھر دوڑ بجاؤ. میرے بھائیو، یہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے. ایک مسلمان اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سارا کام کرے. ایک مسلمان وہ ہے جو چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، کھائے تو لگے مسلمان ہے، کسی مجلس میں پہنچے تو لگے مسلمان ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت. لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے. آج مسلمان زنا کے اڈوں میں اور زنا کاری میں عام ہوتا چلا جا رہا. مسلمان کا نام باقاعدہ، ابھی آپ نے وہ نام سنا بہت سی جگہوں میں، فلاں مسلمان لڑکے نے فلاں ہندو لڑکی کو بھگایا، یا فلاں مسلمان لڑکی کو بھگایا، فلاں مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا، فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی. آپ یہ سارے واقعات پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اندور کے وہ تمام خبروں کو آپ کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہوگی کہ اندور کے اندر 1000 لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو چکی. خبریں آپ سن رہے ہوں گے. اور اس موبائل نے تو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے جس کے چہرے کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا، جس کے چہرے کے اوپر کبھی محلے کی نظر نہیں پڑی. آج وہ لڑکیاں اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے. اور اتنا زیادہ اس موبائل کی اس گندگی میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہے. ویڈیو کالنگ کر کے اپنے جسم کو دکھا کر کے اتنا زیادہ قید ہو چکی ہے کہ باقاعدہ مجبوراً اس کو ہوٹل میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اسے ڈر ہے کہیں میری عزت کی بات نہ لگ جائے. میرے بھائیو، آج موبائل نے یہاں سے یہاں تک پہنچا کر کے رکھ دیا ہے. غور کرو، نیک عمل ہے ہی نہیں. اللہ سے توبہ کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو. مرنے کے بعد کی زندگی جناب محمد رسول اللہ اس کی فکر کیا کرتے تھے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر کر رہے ہیں اور آنے والی زندگی کی فکر اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے جب آتی ہے، اے اللہ کے رسول ہم شراب نہیں پیئیں گے، ولا اے اللہ کے رسول ہم زنا نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں. اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ سب کام نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا، اے میری بیوی عائشہ، ان عورتوں سے کہہ دو، عورتوں سے ہاتھ ملا نہیں سکتا محمد رسول اللہ. ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ان عورتوں سے کہہ دو کہ ناخن چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ کر نہیں سکتا ہو. ہاں، تم اپنے زبان سے کار کر رہی ہو، ہاں تمہاری زبان سے کار کرنا اسے تو مان لیا جائے گا. پانی کی طرف میں ایک طرف تم ہاتھ مار دو، اسی پانی کی طرف دوسری طرف میں ہاتھ مارتا ہوں، اس طریقے سے بیعت کر لیا جاتا ہے. لیکن ہم تمہارے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور رات میں سجدے میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ روتے گر گراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور باقاعدہ یہ دعا مانگتے، اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا. غور کیجیے، آپ تصور کیجیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو. میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، حضرت ربیعہ ابن کعب کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ربیعہ ابن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ربیعہ کعب الاسلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت ربیعہ کعب سے اللہ کے نبی نے ایک دن کہا، صلی حاجہ، اے ربیعہ ابن کعب تمہیں جو چاہیے بولو، اے ربیعہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگو.
साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, ये दुनिया चंद साल जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपने फरमाया अगर तुम्हें जन्नत में मेरे साथ रहना है, सुजूद, ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, सजदे करो, यही नमाज तुम्हें मेरे साथ जन्नत में रखेगा। नमाज की पाबंदी करो, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, यही नेक अमल तुम्हें मेरे साथ रखेगा। गौर कीजिए आप, सहाबा से ये नहीं कहा चलो तो ठीक है तुमने मेरी खिदमत कर ली, तुम्हें नमाज की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। आपने फरमाया नहीं, तुम्हें अगर मेरे साथ जन्नत में रहना है तो नमाज की पाबंदी करो। मेरे भाई कितने हमारे नौजवान हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। गौर कीजिए, सोचिए, आज नेक अमल कहां, खाली बुरे अमल है, गलत पे गलत कर रहे, कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, कभी इसको गाली दी, कभी उसको गाली दी, कोई फिक्र नहीं, मरने के बाद अल्लाह के सामने झगड़ा है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी को देखो, हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने हजरत बिलाल को सिर्फ इतना कहा था, बिलाल, ऐ बिलाल तुम काले हो, ए काले, ए कलूटे, ए काले की औलाद। हजरत बिलाल को सिर्फ इतना कहा था हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने। हजरत बिलाल ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि रोने लगे, और इसी रोते रोते हजरत बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र गफ्फारी ने मुझे काले का ताना दिया है, मुझे काला कहा है, मेरे माँ को काली कहा है, काले कलूटी की औलाद कहा है। अल्लाह के रसूल, क्या इस्लाम में यही सब कुछ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कोई काला गोरा कुछ नहीं होता है। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में कोई काला, कोई गोरा, कोई महबूब नहीं, सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो दुनिया के अंदर तकवा वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, सबसे ज्यादा दीनदार आदमी जो है वही अल्लाह के नजर में महबूब है। ऐसा नहीं सऊदी का रहने वाला तो अल्लाह के नजर में बड़ा प्यारा है, हिंदुस्तान का रहने वाला तो अल्लाह के नजर में प्यारा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हिंदुस्तान का रहता हो, काला हो, दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन दीन इस्लाम के ऊपर चलने वाला हो, शरीयत के ऊपर अमल करने वाला हो, तो अल्लाह के नजर में बहुत ज्यादा प्यारा है। काला है, लेकिन क्या हुआ, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, वो आदमी अल्लाह के नजर में बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र गफ्फारी को बुलाया, आई अबू ज़र क्या सुन रहा हो, तुमने क्या हजरत बिलाल को तुमने काला कहा है? अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा कह दिया है, मुझसे गलती हो गई है। ऐ बिलाल, तुमने जमाना जाहिलियत वाला काम किया है, तुमने इतना घटिया काम किया, किसी को तुमने काला कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया उसके ऊपर तुमने बुरी नजर देखा और तुमने उसको गलत कहा है, तुम्हें डर नहीं है कि अल्लाह के पास जाना है। ये सुन रहा था, हजरत अबू ज़र गफ्फारी बाहर निकले, हजरत बिलाल को पकड़ा, ऐ बिलाल मुझे माफ कर दे, ऐ बिलाल माफ कर दे, ऐ बिलाल मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गलत कह दिया है, मेरी ज़बान से गलत जुमले निकल गए। ऐ बिलाल, अगर तूने माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ऐ बिलाल, अगर तुमने माफ नहीं किया तो कल क़यामत के दिन में अपने रब को क्या जवाब दूंगा? ऐ बिलाल, कहीं इसी वजह से मैं जहन्नम के अंदर चला गया तो मेरा हाल क्या होगा? ऐ बिलाल, मुझे माफ कर दे। मेरे भाई तो बिलाल से माफी मांग रहे हैं और हजरत बिलाल ने उसको माफ भी कर दिया। अल्लाह, हजरत बिलाल ने माफ कर दिया और दोनों के दोनों गले लग गए। मेरे भाइयों, छोटी छोटी बातें सहाबा पकड़ा करते थे और छोटी छोटी बातें दुनिया में खत्म कर लिया करते थे। उसे इस दुनिया से ज्यादा फिक्र थी आखिरत की, उसे इस दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र थी, उस दुनिया की ज्यादा फिक्र किया करते थे कि मरने के बाद कल क़यामत में मेरे साथ कहीं जुल्म ना हो, मरने के बाद कहीं नाम अयामान मेरे बाएं हाथ में न दे दिया जाए। इस वजह से कुरान कह रहा है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, ऐ लोगों जो
गया फला बाबा के पास। वाला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, शिर्क मत करो। नेक अमाल को बर्बाद करने के लिए शिर्क काफी है। अगर आपने अच्छे अमाल भी कर लिए, हज किया, उमरा किया, सब कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आपने शिर्क कर लिया, तो मेरे भाई ये शिर्क आपके तमाम अमाल को बर्बाद करके रख देगा। आज मुसलमानों की गर्दनों के अंदर ताबीज है, आज मुसलमानों के बच्चों के ये पेशानी के ऊपर टीका लगाया हुआ है। आज हमारी औरत इन चीजों के ऊपर केयर नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, और अपने बच्चों के सर के ऊपर टीका लगा रही है। क्यों? पूछो क्यों लगाती है? जवाब देती है डायन से बचेगी। मेरे भाइयों, एक टीका किसी को बचा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? जो अल्लाह रहम मातर के अंदर बच्चे की हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह दुनिया में आने के बाद उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? जहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हवा का कोई जरिया नहीं है, वहां पे अल्लाह ताला ने उस बच्चे को 9 महीने तक, 8 महीने तक हिफाजत की और उसको सेव रखा, उसकी हिफाजत की। वहां पे तो ढाई की नजर न पड़ी, वहां पर तो धूप की नजर न पड़ी। जब वो बच्चा दुनिया के अंदर आया, उसी बच्चे को ताबीज तुम लटका रहे हो और सोचते हो ये ताबीज बच्चे की हिफाजत करेगा, ये बच्चे को बचाएगा, ये बच्चा डायन से बचेगा। मेरे भाई, यही तो शिर्क है। अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल नहीं रहा, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मेरे भाई, इस शिर्क से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को, रसूलों को भेजा है। ताकि लोग तागूत से बचे, शिर्क से बचे और अच्छे अमाल दुनिया में करें। जो अच्छे अमाल करेंगे उसको जन्नत मिलेगी, जो बुरे अमाल करेंगे उसको जहन्नम मिलेगा। जन्नत के अंदर जाएगा, अल्लाह के कसम, जन्नत के उस मंजरों को कभी पढ़ लो, कभी जन्नत के उस मनाजिर को पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जन्नत ऐसी है, जन्नत इतनी खूबसूरत है, जन्नत इतनी खूबसूरत है कि कोई आदमी जन्नत के अंदर एक पल के लिए गया, दुनिया की तमाम तकलीफों को भूल जाएगा। इतनी खूबसूरत जन्नत है। और जन्नत में एक लड़की नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 70 हूरों अल्लाह ताला क्या करेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो दुनिया में दीनदारी अपनाएगा उसी को जन्नत मिलेगी, जो दुनिया में जिनाकारी से बचेगा उसी को जन्नत मिलेगी। एक कहने लगा, मुझे सब अच्छा ये बताइए, दुनिया की ये हीरोइन है जो कैटरीना है, करीना है, ये कहाँ जाएगी? मैंने उससे कहा था, अगर ये मर गई और तौबा किए बगैर मर गई, इस्लाम नहीं लाई, तो जहन्नम के अंदर जाएगी। मौलवी साहब, इतनी खूबसूरत जहन्नम में होगी, हम जन्नत में जाके क्या करेंगे? हम भी जहन्नम ही में जाएंगे, ताकि इनको तो देख ले। मेरे भाइयों, ये अकीदा लोगों का बन चुका है और जहन्नम में जाना गवारा है। ये जहन्नम को आसान समझ लिया है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अल्लाह का अज़ाब वाक़े होने वाला है, अल्लाह का अज़ाब चिमटने वाला है। हज़रत उमर फारूक को देखो, अल्लाह के कसम, उमर फारूक एक बुढ़िया की खिदमत करके आते हैं और मस्जिद नबवी में जाते हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे इस नेक अमल को अल्लाह कबूल कर ले। पीछे से एक सहाबी है, वो सहाबी पीछे से कहते हैं, उमर अगर तू जन्नत में नहीं गया, उमर अगर तू जन्नत में नहीं गया तो जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में किसी गरीब की मदद करने वाला तू कोई देखता भी नहीं है, तो रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन होकर के किसी की खिदमत कर रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है और आकर की दुआ मांग रहा है कि अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले। अगर तू अज़ाब जहन्नम से नहीं बचा तो कौन अज़ाब जहन्नम से बचेगा? अगर तू जन्नत में नहीं गया तो कौन जन्नत में जाएगा? उमर तू जन्नत में जाएगा, उमर तू जन्नती है। वाकई मैंने देखा तुमको ऐसा काम करते हुए। रब्बना सिर्फ अंदा अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाब रब्बिका इन्ना अज़ाबहा कान गराबा। हज़रत उमर फारूक दुआ मांग रहे कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा, क्योंकि तेरा अज़ाब चिमटने वाला है, चिमट जाएगा, इंसान को पकड़ लेगा। और मेरे भाइयों, जहन्नम की आग को कभी कभी सोच लिया कीजिए, दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा है, डेंजर है। सोचिए, कम से कम उस जहन्नम को याद करके नेक अमल कीजिए। ये जलसे होते उलमा बताते हैं आपको, बस तकरीरें सुन लेते हैं, अमल हम क्या करें? ये मौलवी करेंगे, ये मदरसों में पढ़ने वाले तलबा करेंगे, ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां तालिबात किया करेंगी। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम तो कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, हम तो
मुश्किलों में पड़ते, हमारे लिए दीनदारी नहीं है। हम तो जीन्स भी पहने हमारे लिए जायज, हम टी शर्ट भी पहने और हम अपनी हुस्न का जलवा भी दिखाएं, हमारे लिए सब कुछ जायज है। ये सब मौलवी बस दीनदारी अपनाए, ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां ही पर्दा करें, हम काहे को करें। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, जन्नत और जहन्नम के ऊपर कभी कभी सोच लिया कीजिए, अगर मैं मरा और जहन्नम के अंदर चला गया तो मेरा क्या हाल होगा। जन्नत अगर मेरी जिंदगी न बनी मरने के बाद तो मेरा हश्र क्या होगा, जरा कभी कभी सोच लिया करो। इस उम्मीद के साथ आदमी को नेक अमाल करने चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं नेक अमल करूं, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई नेक अमल नहीं कर सकता है। मस्जिद के बगल में खड़ा है लेकिन मस्जिद में जा नहीं सकता है, नमाज पढ़ने की उसको तौफीक नहीं मिलती है। इस वजह से हर दिन आदमी को 17 मरतबा तौफीक आदमी मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। 5 टाइम में 17 मरतबा ये दुआएं मांग रहा है, अल्लाह मुझे बुरे रास्ते से बचा, सीधे रास्ते पर चला। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं अच्छे अमाल हो रहे हैं, अगर कोई अमल भी कर रहा उसके अंदर दिखावा। एक हाजी साहब थे ना, हज करके आया, एक दुकानदार के पास गया, कहा कि मेरा नाम है इसके अंदर, बोला है कितना बाकी है, बोला कि 22,000 बाकी। अच्छा, उसने लिखा, बोला कि दिखाओ तो डायरी दी और उसने उस नाम के सामने, मान लो उसका नाम सनाउल्लाह था, उस नाम के सामने उसने सिर्फ नाम इतना बढ़ा दिया, हाजी सनाउल्लाह। अब बोला ठीक है, अब डायरी रखो, चला गया, पैसा नहीं जमा किया, हज करके आया, बोला अब मेरा नाम बदल गया, सनाउल्लाह मत कहना, हाजी सनाउल्लाह कहना। ये कौन बताइए, अमल भी कर रहा है, ये लोग अमल भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी रियाकारी है, दिखावा है। हालांकि हदीस तो आपको मालूम है, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने भी शिर्क किया। मन सल्ला युराई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिर्क किया। नेक अमल करने की कोशिश करो, नेक अमल जिसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई हो और जिस अमल के अंदर खुलूस हो। नमाज पढ़ते चले जाओ और आप नमाज पढ़ रहे हो, इसी कठोतिया के अंदर, कालीगंज कठोतिया के अंदर नमाज पढ़ रहे हो, आपकी नजर मौलाना अबुल कलाम के ऊपर पड़ी के ये मौलाना मेरे गांव में आए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, अगर मैंने नमाज अच्छी से न पढ़े तो हो सकता मेरे ऊपर तकलीफ ये मौलाना कर देंगे। अब आप नमाज अच्छे से पढ़ने लगे क्योंकि मौलाना मुझे अच्छा कहेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम लेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे तो वो नमाज नहीं है, उस नमाज को शिर्क कहा गया है, उस नमाज को रिजेक्ट बताया गया है, वो नमाज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बल्कि उस नमाज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक इबादत भी कर रहे हैं, उसके अंदर खुलूस नहीं है, उसके अंदर अल्लाह की रज़ा दाखिल नहीं है, उसके अंदर दिखावा शामिल है, ये दिखावा अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। एक अमल कर रहे हो उसके अंदर अल्लाह ताला के लिए रज़ा नहीं है, अल्लाह ताला को खुश करने की तो ख्वाहिश नहीं है। और दूसरा काम, अगर आप अमल कर रहे हैं तो उसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होनी चाहिए। अमल निकाह करना ये अच्छे काम है, बहुत अच्छा काम है, आदमी निकाह कर ले। ज़िना से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या निकाह है। आदमी निकाह करता है तो यगुज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फर्ज, इंसान की नजरों की हिफाजत करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। जाहिर सी बात है, बीवी है, इधर उधर देखिएगा, बीवी आपको बता देगी कितना पावर वाले आते हैं। निकाह करो, आदमी अपने शर्मगाह की हिफाजत, ये निकाह ही सबसे बड़ा एंटी वायरस है आदमी को ज़िना से रोकने के लिए, सबसे बड़ा एंटी वायरस निकाह, सबसे बड़ा एंटी वायरस है निकाह, सबसे बड़ा एंटी वायरस है निकाह, ये ज़िना से बचाने के लिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहाँ निकाह नहीं, अरे मौलवी साहब निकाह इतना जल्दी क्यों करेंगे, अभी हम इश्क लड़ाए, अभी इंजॉय करें, अभी तो जिंदगी इंजॉय करने के लिए है। 4 दिन की जिंदगी, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज मस्ती करें, खुलूस खत्म। और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर भी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मोहर नहीं है। आप अगर काफी करना है तो उसके अंदर मोहर होनी चाहिए। आप निकाह कर रहे हो, निकाह के अंदर आपके यहाँ बहुत से रस्म रवाज में जन्म ले लिया है,
हदीस दिखा दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में ये बारात का सिस्टम था। बताओ तो सही मेरे भाइयों, तुम नबी ने नहीं किया तो तुम कर रहे हो, और अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को अहले हदीस कहते हो। निकाह करो, 10 15 20 आदमी जा करके निकाह कर लो, निकाह को आसान करो। लेकिन आज निकाह को मुश्किल बना दिया गया है, ज़िना को आसान कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ दिखावा है, आज हमारे यहाँ रियाकारी है, आज हमारे यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे अमल नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र नहीं है, सब कुछ यही दुनिया दुनिया, जिस दुनिया को तो बहुत ज्यादा तुमने वैल्यू दे रखा है। अल्लाह के कसम, अल्लाह के नबी फरमाती है दुनिया अल्लाह के नजर एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर। मरी हुई बकरी, आज आपके यहाँ कोई बकरी मर जाए, कोई बकरा मर जाए, कोई मुर्गा मर जाए, मुर्गा तो मौलवी बहुत पसंद करता है, शेख मोहम्मद से पूछिए मेरे भाइयों, गौर करो, मुर्गा मर जाए लेकिन मौलाना से कहो इसको खा लो। ये है मेरे साहब, ये क्या बात कर रहे हो, ये मुर्गा मैं कैसे खा सकता हूँ, ये मुर्गा मर गया, ये तो हराम, इसको खाया नहीं जा सकता है, ये तो हकीर है, ये तो सलील है, इसको खाया नहीं जा सकता है, ये कैसे खाऊं, ये कैसे खा सकता हूँ, हकीर है, ये बकरी। अब आप कहेंगे चलो ठीक है मोरे साहब खाओगे नहीं, चलो फ्री में ले लो जाओ, हम इसको फ्री में भी नहीं लेंगे, ये हकीर मेरी नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं जिस तरीके से तुम्हारी नजरों में बकरी हकीर है, जिस तरीके से तुम्हारी नजरों में ये मुर्गा और ये मुर्गी हकीर है, जिसको तुम लेना का वादा नहीं कर रहे हो, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नजर में ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है, जिसके पीछे तुम दीवाना हो, पागल हो और हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया कर रहे हो, जब दुनिया के चक्कर में पड़े हो। मेरे भाइयों, दुनिया भी तुम्हें मिल रही है, नहीं मिल रही है, न खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, न खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, न इधर के रहेगा उधर के रहे, दुनिया के चक्कर में पागल हो, लेकिन ये दुनिया नहीं मिल रही है, क्योंकि दुनिया के चक्कर में जितना भागोगे ये दुनिया तुमसे दूर होती चली जाएगी। इस वजह से दुनिया में जरूर रहो, लेकिन दुनिया को उतना ही अपनाओ जितना जरूरत है, उससे ज्यादा दुनिया से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उन शुरूओं को कभी कभी याद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पे, जमीन में, चटाई पे सो रहे हैं, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये चटाई के निशानात आपके पीठ के ऊपर लग रहे हैं, अल्लाह के नबी आपके लिए मैं कम्बल ला करके दे दूं, आपके लिए मैं कालीन ला करके दे दूं, गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं। आपने फरमाया नहीं, माली वली दुनिया, मुझे माल दुनिया से क्या मतलब है, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। आपने कभी ये फरमाया हजरत आयशा से, आयशा मेरा बिस्तर इतना गद्देदार न बनाओ, इतना नरम नाजुक वाला न बनाओ कि मैं इस बिस्तर में सो और फजर की नमाज मेरी छूट जाए। आयशा मेरे लिए ऐसा बिस्तर भी मैं बिछाओ जिसके अंदर मैं सो और फजर की नमाज छूट जाए, तो कल क़यामत के दिन मैं तेरा को क्या जवाब दूंगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोच थी। आज आई जहेज में लेने वालों, कालीन में सोने वालों, गद्देदार के बिस्तर में सो करके फजर की नमाज छोड़ने वालों, कभी कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को भी पढ़ लो। मेरे भाइयों, ये चंद बातें तो जो मैंने आपके सामने रखी, 1.5 घंटे की तकरीर हो चुकी है। कल मैंने आपके सामने वहां किया था और अभी लगातार बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हर जगह मुझे पहुंचना है। और जाहिर सी बात है हमारे शेख मोहम्मद साहब जो इस मिफ्ताहुल उलूम मदरसा के हेड मौलवी हैं, मुदर्रिस हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस मदरसे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा फोन में इस मदरसा के ताल्लुक से बात करते रहते, मौलवी साहब कोई जरिया बताइए, कोई तरीका बताइए कि मेरा मदरसा और आगे बढ़े। ऐसे मुदर्रिस की आदमी को इज्जत और सम्मान और ऐसे आलिम को इज्जत देनी चाहिए, सराहना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाकायदा लगे हुए किसी जलसे को सक्सेस करने के लिए। इतनी आसानी से जलसा नहीं होता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। आपसे हमारी गुजारिश यही रहेगी कि ये मदरसा